Hello my dear students, today in this lecture I will explain you about the various forms of straight lines. इससे पहले वाले लेक्चर में आपने स्टडी किया था about the slope of a line concept and in the slope of line concept we have also done the exercise 10.1. So let's see the various forms of lines. लाइंस के कौन कौन से टाइप्स हैं जिनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में एंड विच आर वेरी यूजफुल फॉर द अनदर टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स सी. The first equation of line, that is horizontal or vertical lines. Horizontal or vertical lines. In the horizontal or vertical lines, देखिए horizontal और vertical lines हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? The horizontal and vertical lines related to the x coordinate axis and y coordinate axis. Let we draw the coordinate axis. Let this is y-axis and this is x-axis. अब x-axis के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, the lines which are parallel to the x-axis, these all are horizontal lines. These all are horizontal lines. जब भी हम horizontal line की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, let's see. हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस से इनका डिस्टेंस गिवन होगा, कुछ न कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से गिवन होगा और ये जो भी डिस्टेंस है ये क्या है? परपेंडिकुलर है. दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर. दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर. सो इन दिस वे वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस. बट अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? देखिए आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी कर रखा है. If we draw any point in the coordinate geometry, so you will draw one of the perpendicular line and the horizontal line. This perpendicular denote the length of y coordinate and this horizontal denote the length of x coordinate. Okay, from the origin. तो origin से जो इनका length है y and x, this is denoted for the point p x y in the coordinate axis. तो यहाँ कौन सी distance है? Perpendicular distance है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ ऑफ y, दैट इज y इज इक्वल टू वॉट एवर, ये कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है यहाँ पर. लेट इट विल बी डिस्टेंस 1 2 3, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है और ये डिस्टेंस किसके फॉर्म में होगी? y के फॉर्म में होगी. दैट्स वाई जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे, देन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, equation of horizontal line will be equal to y will be equal to d. y, that is this length always denote y, so that's why हमने y का यूज किया है, and equal to whatever the distance we have to given from the x-axis. Okay, so that's why the equation of horizontal line will be equal to y is equal to d. d यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. यदि हम एक्स एक्सिस की बात करें, देखो वैन एक स्पेशल केस आ गया इसमें, वैन d इज इक्वल टू 0, जैसे ही d की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे देन y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. और y इज इक्वल टू 0 क्लास 10 से हमने स्टडी कर रखा है, y इज इक्वल टू 0 किस पर होता है? एक्स एक्सिस पे. सो दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन और वी कैन से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. So y is equal to 0 क्या हो गया? y is equal to 0 is called the equation of x-axis. In the similar way, when we draw the perpendicular line to the x-axis, or we can say we draw the lines parallel to y-axis. कुछ इस टाइप से when you will draw line parallel to y-axis हम lines draw करेंगे, then these lines are called vertical lines. और ये vertical lines किसके perpendicular है? Vertical lines are perpendicular to x-axis. For that vertical lines हम ये horizontal distance origin से find out करेंगे. Okay, and these distance show the x coordinate. So that's why जब भी हम vertical lines की equation लिखते हैं, whenever we write down the equation of vertical lines, equation of vertical lines, so this is always denoted by let x is equal to small a.
हम इन लाइंस की इक्वेशन को किससे डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एंड दिस स्मॉल a विल बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये स्मॉल है a पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड अगेन द स्पेशल केस वी डिस्कस व्हेन स्मॉल a इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही स्मॉल a जीरो हो जाता है देन हमारे पास क्या गया, x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो किस पर होता है, y एक्सिस पे। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन से कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू जीरो। तो y एक्सिस की इक्वेशन हम किससे डिनोट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो से। तो यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हमें दो तीन नए कंसेप्ट यहाँ पर सीखने को मिले। द फर्स्ट कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज गिवन बाय y इज इक्वल टू d, equation of x axis is y is equal to 0, equation of vertical lines always given by x is equal to a, and equation of y axis will be equal to x is equal to 0. So this is the first important concept. ये सबसे पहला important concept हो गया। Now let's see, और ये important concept आगे 12th में भी बहुत यूज आएंगे आपके। okay. So this is the first important form of line we have studied. इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, इस पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y axis, which is parallel to y axis। ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि y axis के पैरेलल है, and cut the x-axis at -2, और x-axis को कहां पर कट करें, -2, पे कट करें। तो देखिए हमें y-axis के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मैंने y-axis ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल लाइन कहां लिखूंगा मैं, जो -2 से पास हो रही है। -2 तो पॉइंट यहां होगा, तो इससे पास होने वाली ये वाली लाइन हो गई। दिस लाइन इज पासेस थ्रू -2, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, -2। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x इज इक्वल टू स्मॉल a के फॉर्म में। तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इन दैट केस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू -2। सो दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अप्लाई करना, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम फॉर्म कर दिया, तो डायग्राम से ही आपको एंड टू एंड पता लग जाएगा कि आपको कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, so now the next concept now we are going to study, that is the slope intercept form of a line. The next concept is very important. This is the second type, slope intercept form. Slope intercept form of a line. Now what is the meaning of slope intercept form of a line? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका हमें स्लोप भी गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो। इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन या तो y एक्सिस को कट कर रही है या वो लाइन हमें वो किसको कट कर रही है, x एक्सिस को, और हमें वो इंटरसेप्ट गिवन है। एग्जाम्पल दैट मैं यहाँ पर दो फॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ। द फर्स्ट फॉर्म आई एम डिफाइनिंग हियर, द लाइन वी हैव टू गिवन दिस वन, ये हमें एक लाइन गिवन है, लेट लाइन स्मॉल l वी हैव टू गिवन, और इसका y एक्सिस पे हमें इंटरसेप्ट गिवन है स्मॉल c। जब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट स्मॉल c गिवन है तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0, और इसका स्लोप भी गिवन है, हमें स्लोप m गिवन है, इसका स्लोप कितना गिवन है, m, और लेट इस पे हमने कोई एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया p x y। ओके, सो दिस इज द y इंटरसेप्ट वी हैव टू गिवन, दिस इज y इंटरसेप्ट वी हैव टू गिवन। तो जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन होगा, कहां से ले रहे हैं, देखो ये डिस्टेंस ओरिजिन से ले रहे हैं, तो आप देखिए लाइन l का स्लोप कितना गिवन है, m, और इस पे एक आर्बिटरी पॉइंट लिया है और एक पॉइंट क्या है, 0, c। यदि हम इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, y माइनस y1,
अपॉन x माइनस x1. So y minus c is equal to mx. So y is equal to mx plus c. So this is the slope intercept formula. तो एक तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला याद रखना है, बट कब याद रखना है? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हमें लाइन का स्लोप गिवन होगा और लाइन के स्लोप के साथ हमें y एक्सिस पे लाइन कितना इंटरसेप्ट कर रही है वो हमें गिवन होगा. मतलब कितना लेंथ कट हो रहा है y एक्सिस पे, वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. ओके, c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. अगेन आई वांट टू टेल यू, c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब लाइन अबव एक्स एक्सिस फॉर्म हो रही है और नेगेटिव मतलब लाइन बिलो एक्स एक्सिस कट कर रही है. इसको y एक्सिस को. इन द सिमिलर वे एक हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस टाइप का आ गया. That is intercept on x-axis. We have to find the equation of line L which having the slope m और ये x-axis पे कितने का इंटरसेप्ट कर रही है? d का इंटरसेप्ट. तो ये पॉइंट कितना हो गया? d, 0 और हमने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया p x, y. जब हमें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है स्मॉल d और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें स्लोप भी गिवन है, तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा? m इज इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल अपॉन x2 माइनस x1. सो y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d. सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला. सो वी हैव टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला. फर्स्ट इज दिस वन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, सेकंड इज दिस वन. तो ये दोनों ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. ओके, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जहां पर हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका हमें स्लोप भी गिवन है और y या x एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है. देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम ये कंसेप्ट. इस कंसेप्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास? लेट्स सी. सो लेट क्वेश्चन नंबर 2, I think we have to find the equation of line. We have to find equation of line whose tangent of theta, that is tan theta, तो हमें यहाँ पर हाफ गिवन है. यहाँ पर tan theta कितना गिवन है? हाफ. और थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. व्हाट इज थीटा? थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. tan theta इज इक्वल टू हाफ दे रखा है. एंड इन फर्स्ट केस y इंटरसेप्ट इज, in first case the y intercept is minus 3/2 और second केस में दे रखा है x intercept is 4. दो अलग अलग केस में हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. एक केस तो हमारे पास क्या है जब y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 है और एक केस है जब x इंटरसेप्ट 4 है और tan थीटा इज इक्वल टू हमें 1/2 गिवन है. देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट केस में हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, सेकंड केस में हमें क्या गिवन है? x इंटरसेप्ट गिवन है. ओके, तो जब फर्स्ट केस की बात करूं तो y इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. y m क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा कितना गिवन है? 1/2. दिस इज x. और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट कितना गिवन है? माइनस 3/2. फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक जर्नल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख दी और कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया? स्लोप इंटरसेप्ट. क्यों? क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, दैट्स व्हाई मैंने स्लोप इंटरसेप्ट कंसेप्ट अप्लाई कर दिया. सेकंड केस भी आप देख सकते हैं. सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है? एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं. यहाँ पर मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़े, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह. y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी. m तो दे रखा है 1/2 और d दैट इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 4. सो दिस इज आई थिंक 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू x माइनस 4. सो x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव डन ऑन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्वेश्चन हुआ. आई थिंक इससे आपको स्लोप इंटरसेप्ट कंसेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा. करेक्ट.
देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा आफ्टर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. द नेक्स्ट टाइप दैट इज थर्ड वन, पॉइंट वन पॉइंट फॉर्म. दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट लाइन. वन पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वन पॉइंट फॉर्म का मीनिंग है दैट इज एक हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका आपको स्लोप m गिवन है एंड एक तो स्लोप गिवन होगा इसमें और एक वन पॉइंट गिवन होगा. कोई भी लेट हमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1. That is, we have to find the equation of line which slope we have to given और line किससे पास हो रही है? of one fixed point x1 y1. इसका प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए हम एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेंगे xy. अगेन द कंसेप्ट वी अप्लाई. स्लोप कितना गिवन है m और लाइन का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया. एक ये वाला जो पॉइंट है हमें दिस पॉइंट वी हैव टू गिवन. ओके देन हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x. ओके और हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is called one point formula. मतलब ये फॉर्मूला हमें वहां अप्लाई करना है जहां पर हमें वन पॉइंट गिवन हो, एक ऐसा एक पॉइंट गिवन हो लाइन पे और एक लाइन का स्लोप गिवन हो. वहां पर हम वन पॉइंट फॉर्मूला लाइन का अप्लाई कर सकते हैं. देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया. जैसे हम कोई भी एक डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं. यहाँ पर वी हैव टू फाइंड equation of line whose slope is 1 by 2 and passing through और लाइन किससे पास हो रही है? -3, 2 से. तो बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है. एक उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जिसका स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. तो वन पॉइंट फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे केस में हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन. द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 is 2 and x1 is -3. So y1 is 2 और m की वैल्यू दैट इज स्लोप हमें हाफ दे रखा है और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी? -3. दैट इज यहाँ कितना आ जाएगा? +3. तो यहां पर हमने सब वैल्यूज पुट अप कर दी. अब थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3 और वी कैन राइट डाउन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सो फार वी हैव फाइंड आउट. आई थिंक यहाँ पर +7 आएगा. ओके सो दिस इज द वे दैट इज हाउ वी कैन अप्लाई द वन पॉइंट फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये थर्ड टाइप हो गया स्ट्रेट लाइन का. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, सेकंड स्लोप इंटरसेप्ट, द थर्ड वन इज वन पॉइंट फॉर्मूला ऑफ द लाइन. द फोर्थ वन इज टू पॉइंट फॉर्मूला ऑफ लाइन. टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. टू पॉइंट फॉर्म क्या हुआ? मतलब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन on which we have to given the 2 point x1 y1 and q x2 y2. 2 point we have to given. तो जब भी 2 point given होते हैं तो 2 point में स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is the way, that is how we find the slope when we have to given the 2 points on the line. But हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो किसी न किसी पॉइंट को एक रेफरेंस लेके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए स्लोप फाइंड आउट करने का मेन मोटो क्या है? जैसे ही हमने स्लोप फाइंड आउट किया तो हमने इसको वन पॉइंट फॉर्म में चेंज कर दिया कि हमें एक स्लोप गिवन है और एक फिक्स पॉइंट लेट हमें x1 y1 गिवन है. चाहो तो आप x2 y2 भी ले सकते हो फिक्स पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया है, m इंटू m दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. So this is the equation of line in the 2 point form.
ओके, तो यहाँ पर हमें कोई से भी दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, दो पॉइंट गिवन होंगे और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो बहुत ही इजी फॉर्म है जिसको हम बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द लाइन वी अंडरस्टैंड, जहां पर हमें कोई भी दो पॉइंट गिवन होंगे, हम फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर देंगे और बहुत ही इजीली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ फॉर्म इज, the fifth one is intercept form. The fifth one is intercept form. देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम अप्लाई करते हैं व्हेन a line cut x and y axis both having some distance. Let this is at a distance intercept, this is at y, this is at y b intercept. So this is the point 0, b और ये पॉइंट कितना हो जाएगा a, 0. Let this is point capital A, this is point capital B. यहाँ हमने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया x, y. ओके, तो हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन पे तीन पॉइंट है हमारे पास A, P, B. अब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का कंसेप्ट अप्लाई करके हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे जनरेट करेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ AP will be equal to slope of PB. स्लोप ऑफ AP कितना आ जाएगा हमारे पास, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, और स्लोप ऑफ PB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास b minus y अपॉन 0 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज इट विल बी minus xy, b minus y, x minus a. राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, then xb plus ay and minus ab minus xy minus xy, they both will cancel out. Okay, final result क्या आ गया, xb plus ya is equal to ab. ab से डिवाइड कर देंगे फुल इक्वेशन में, होल इक्वेशन में ab से डिवाइड कर दो, then x upon a plus y upon b is equal to 1. This is called intercept form of a line. मतलब हमें x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, देन दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये सब फॉर्मूलेस डायरेक्ट याद रखने हैं, यहाँ पर मैं आपको सबके प्रूफ बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जिससे आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर अ फॉर्मूला। ओके, व्हेनेवर यू फॉरगेट द फॉर्मूला यू कैन इजीली प्रूव इट बिकॉज यू नो द कंसेप्ट कि हम कंसेप्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। एंड द लास्ट फॉर्म in the various form of equation of line, now the last form we discuss here, that is called the normal form. Very important form of equation of line. देखिए normal form क्या होता है line का, what is the meaning of normal form of equation of line? Normal form, इन दी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। हमें एक लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस लाइन की क्या प्रॉपर्टी हमें गिवन है, दैट इज इस पर एक नॉर्मल है, एक परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से, दिस इज बेसिकली कॉल्ड नॉर्मल। ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर दे रखा है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है हमें स्मॉल p, the perpendicular distance we have to given this small p, और ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ओमेगा एंगल फॉर्म कर रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू एंगल फॉर्म कर रहा है, या फिर आप इसको बोल दो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आर टारगेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। प्रूफ बता रहा हूं आपको कि कैसे इक्वेशन आएगी, आपको तो डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी, प्रूफ नहीं आएंगे पेपर में। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस परपेंडिकुलर एन। इस ट्राइंगल को मैं अलग से यहां पर शो कर देता हूं जिससे आपको पिक्चर अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेट दिस इज थीटा, दिस इज एन, दिस इज एम, दिस इज द डिस्टेंस पी। ओके, नाउ लेट दिस इज एन, ये ऑलरेडी एन है, ये हमारे पास ओ है। बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसेप्ट साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एम एन अपॉन पी। तो एम एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ओ एन अपॉन पी।
तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो mn आ गया हमारे पास, mn मतलब y कोऑर्डिनेट, और on आ गया दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो देखिए mn दैट इज y कोऑर्डिनेट, तो mn कितना आ रहा है p sin थीटा, on क्या है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसका आ गया p cos थीटा और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया p sin थीटा। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वी फाइंड आउट फॉर द m। अब हम बहुत ही इजीली यहाँ पर स्लोप ऑफ OM फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ OM, देखिए किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जिसपे दो पॉइंट गिवन है, एक 0 0 और एक ये, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 दैट इज p sin थीटा माइनस 0, x2 माइनस x1 दैट इज p cos थीटा माइनस 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास tan थीटा। तो स्लोप ऑफ OM कितना आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ OM इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ दिस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OM, OM क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू लाइन L। एग्जाम्पल दैट हमने लाइन L का स्लोप स्मॉल m ले लिया और इसका स्लोप हमें गिवन है tan थीटा, लेट ये हमें गिवन है स्मॉल m2 और लेट इसको हमने ले लिया m1। जब OM और L परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है जो कि स्लोप ऑफ अ लाइन के लेक्चर में हमने सीखा है। ओके, अब m2 की वैल्यू तो कितनी आ रही है tan थीटा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन tan थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास लाइन का स्लोप आ गया। जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसका स्लोप आ गया। तो देखिए इस लाइन का स्लोप कितना आ चुका है, इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और लाइन पे एक पॉइंट भी है। जब लाइन पे एक पॉइंट m गिवन है और लाइन का स्लोप m1 गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, या इसको हम बोल सकते हैं वन पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला या वन पॉइंट फॉर्म यहाँ पर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ये हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो बहुत ही इजीली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या आ जाएगा, y माइनस y1 that is minus p sin theta is equal to m that is minus cos theta upon sin theta into x minus x1 कितना है p cos theta। ये हमारे पास x1 y1 है किस पे, लाइन L पे, और हमें लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। स्लोप हम ऑलरेडी इस कंसेप्ट से फाइंड आउट कर चुके हैं, सब वैल्यूज पुट अप कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज y sin थीटा माइनस p sin स्क्वायर थीटा माइनस x cos थीटा प्लस p cos स्क्वायर थीटा। माइनस x cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, y sin थीटा एज इट इज, माइनस p sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे, p कॉमन आ जाएगा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। This is called the normal form of a line. This is called normal form of a line. तो normal form of a line हमें कहाँ अप्लाई करना है, the normal form of a line we have to apply जहां पर जो लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा हो और ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। दिस डिस्टेंस इफ यू हैव टू गिवन और एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से हमें गिवन है तो हम लाइन की इक्वेशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, एग्जांपल दैट, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे हमें कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है 2। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगा, x cos थीटा, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री will be equal to p, that is 2.
वैल्यूज पुटअप कर देंगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये तो हो गया √3x/2, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 y इज इक्वल टू 2। फाइनली इट विल बी √3x plus y is equal to 4. So this is called the normal form of equation of a line. So in this lecture you study about the various form of a line, in which I explain you about the horizontal and vertical equation of line, slope intercept form, 1 point formula, or we can say slope point formula, 2 point formula, intercept form of a line, and normal form. I think you understand very clearly all these things. Okay, thanks to all of you, my dear students.